gonna be a lot of this randomly hasna and everything, and we want it that way because we want you guys to connect with us through our podcasts, through our videos. So here I am, your host Wahinur Kaur, And I'm Gunveer. and Today, so today the video and the topic is going to be quite sensitive or very controversial. So for that, and also that is the reason we put up a disclaimer, a friendly disclaimer in the beginning of this video, that we are not going to make any videos to hurt anyone's sentiments. We are just here to tell our opinions on different topics, on different social topics. So it is not pointed out to any one person. We are not here to कोई hatred फैलाने के लिए नहीं है हम लोग यहाँ पे. It's just that we have our own personal opinions, and that is why we are here to share those with you and ask for your personal opinions also on certain topics. So please just make sure कि कोई इसको offensive way में या personally मत ले. Thank you. So guys, for today the topic is quite sensitive. It is LGBTQ+, and now Gunveer will be giving you a gist about what LGBTQ+ is basically. so I know a lot of people would be already aware of it, but still. So the L stands for lesbian, when a woman is attracted to a woman. G stands for gay, when a man is attracted to another man. Bisexual, B stands for like bisexual, and it means that attracted to more than one gender. Transgender, it basically refers to a person whose gender identity differs from the sex that they were assigned at birth. Q stands for queer, or questioning people who are still, exploring their sexuality. And the plus sign represents all the other sexual orientations, gender identities, and expressions which are not covered in the above 5 letters. So this is an umbrella term for the people who are still different, basically, who are considered as different from other people in basic reality of society. So in this video, I think we are going to be on opposite sides, because in general also our opinions are quite poles apart from each other based on this. So my very first question that I'm going to ask Wahinur is that what does LGBTQ plus mean to you personally? And how, and has your opinion developed or changed over time, or it has been the same since the first time you heard about it to till date? Okay, so basically आजकल everybody knows that what LGBTQ+ is. Pride month के बारे में सबको पता है. Everybody knows what lesbian is, what gay community is, of course. So I've always known about this thing, मतलब until I know, जब तक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा prominent हुई. So I've been knowing about this thing, but honestly saying about the change of opinions, to be very honest, this has always been a very foreign topic for me. This has always been like, okay, ऐसा भी कुछ होता है. I've always been questioning something like this, because till date ऐसा कुछ वो नहीं है कि ये चीज़ actual में होती है नहीं होती है. Maybe it's just कि हाँ, I personally feel many times that people also do it in peer pressure. Okay, even I want to explore my identity. If everyone is exploring their identities, if she's lesbian, what if I am lesbian too? What if he's gay? What if I am gay too? I think it's more of a peer pressure these days, but still it is a foreign topic for me. Of course, I know that I have the understanding of the topic, but it is quite topic that I wouldn't consider is very important in my life, because Okay, so follow-up question. So do you think it is unnatural? Like the whole concept that people say that, okay, I'm not attracted to opposite gender, I have feelings for the same gender, or I have feelings for both the genders, or I'm not sure if I am into this sexual stuff or something. Do you think it's unnatural completely? I personally feel it is, because how in this world, how on earth can you normalize a thing like this? I personally feel that, okay? I would be using this term personally again and again, so that
nobody else gets offended here or the audience, okay, because that is entirely my personal opinion. But I think this is a very unnatural topic. I don't think कि ये चीज़ इतनी usually होती है. To be very honest, I haven't seen it in my family. Maybe मेरी family में हो भी, but no one has ever come up and spoken about it so openly, because maybe उनके लिए भी ऐसा हो कि पता नहीं ये चीज़ होती है नहीं होती है and stuff like that. But for me it is an unnatural thing. ऐसा कुछ naturally तो नहीं होता लोगों को, देखा देखी में हो जाए, that is a different thing. Naturally I don't think something like this So happens. I completely think opposite of her. I think the concept is, I'm not saying that सभी लोगों के बीच में it's very natural, but I think it's natural only. People genuinely feel difficult to have, you know, feelings for the opposite sex, and they tend to have feelings for the same sex. मुझे लगता है it's a very very natural thing. जैसे हम जो straight लोग हैं उनके लिए it's natural to fall for opposite gender. I think for people who are gay or lesbian or bisexual, it's very natural for them to fall in love with the same gender or with both the genders. So मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि ये आज प्रेवलेंट नहीं हुआ है, मे बी इट हैज़ बिन, अभी बात होनी अब शुरू हुई है इसके बारे में, बट आई जेन्युइनली फील लाइक कि ये पहले के टाइम से रहा है. पीपल इन आर ओल्ड बुक्स, हिस्ट्री की जो भी आप मैंने पढ़ी नहीं है, बट मैंने सुना है कि होता तब से ही है. एंड आई फील लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जो हैं असल में ऐसे लेस्बियन हैं या गे हैं या फिर उनको भी पता ही नहीं उनकी सेक्सुअलिटी क्या है. आई थिंक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम अप फ्रंट एंड यू नो एक्सेप्ट देमसेल्व्स फर्स्ट, बिकॉज सोसाइटी हमारी इतनी अच्छे से एक्सेप्ट करती तो है नहीं, मतलब you know नहीं करती है सोसाइटी हमारी. That was very rude. I must be clear with it. This was a personal attack, guys. So why are we sitting here for personal attacks only? So I genuinely feel like on a very serious note that I don't agree to her. I still feel that peer pressure होता है. A lot of people do this too, you know, because it's now a trend also. Cool भी लगना है, सब करना है, तो इसीलिए भी कुछ लोग करते हैं. बट द फैक्ट दैट आई डोंट थिंक सो कि ये अननेचुरल है. मुझे लगता है कि अंदर से उनको सच्ची में नहीं आती है ऑपोजिट सेक्स के लिए फीलिंग्स, ऑपोजिट जेंडर से नहीं होता है उनको प्यार, उनको अपने सेम जेंडर से प्यार हो जाता है. एंड आई थिंक इट्स ओके. आई डू बिलीव इन द स्टेटमेंट लव इज़ लव. सो आई थिंक I don't agree to Wahinur at all on this. But personally saying, I feel कि the way God has made you, it is because of a reason, and it is ये चीज़ हमारी बुक्स में या कहीं पे I don't know लिखी गई है नहीं लिखी गई, but it has always been like कि the concept of marriage or the concept of love can only be between, like you know, intimate love अगर मैं देखूँ तो it can only be between a male and a female. फीमेल मेल का ये सारी चीज़ें आई एम नॉट श्योर कहीं बुक्स में लिखा है कहीं नहीं लिखा, बट आई फील कि ऐसा कुछ करना, ऐसा कोई चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आनी है, ऐसा कोई कंसेप्ट अपने दिमाग में लेके आना, इस कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट टू द डिवाइन पावर दैट हैज़ मेड यू कम इन टू दिस वर्ल्ड, उसके लिए कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्टफुल है. क्योंकि अगर उसने आपको फॉर एग्जाम्पल एक लड़का बनाया, उसने लड़का आपको इसलिए बनाया कि आप मैस्कुलिन रहो, आप कल को अपनी जो फैमिली है, अपनी वाइफ है, अपने बच्चे हैं, उनके लिए जाके यू कैन गो एंड यू कैन बी द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली. आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी लॉजिकल प्लेइंग विद what divine power has given you. I don't think that is fine कि अपने आप को giving another identity other than the one that has been given to you at your birth. And I think जो birth पे आपको identity मिली है, you have come into this world, you've come into this world for a reason. If the God has made you male or female, like ठीक है वो chromosomes की बात होती है, X chromosome, Y chromosome, that is a different thing. But still मेरा ये मानना है कि अगर आपको as a male भेजा गया है, there is a reason behind it. अगर आपको as a female भेजा गया, there is a reason behind it. So playing with nature in general, playing with what divine power has given you, what God has made you, I think that is completely wrong. That is absolutely wrong in my case, if I tell you. I don't agree to her again. And everyone is going to be like, I don't agree to you, I don't agree to you. Because I think I agree that there is a divine power and you know, बट अगर डिवाइन पावर हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट आया है गे का
लेस्बियंस का या फिर पूरी LGBTQ+ कम्युनिटी का, तो वो भी उसमें भी डिवाइन पावर का कहीं ना कहीं हाथ है. I genuinely feel like this, and I think it's not necessary. I think the fact that she said ke the intimate love is between a male and a female, I think that love only has one outcome, which is children, which is increasing the population. अब generation बढ़ानी है, आपको population बढ़ानी है, इसी चीज में उसका है. बाकी प्यार तो इंसानों को आजकल कुत्तों से भी तो होता ही अपने. तो that doesn't mean that a man and a man cannot be in love. They can also share the same amount of love that a male and a female can share, or they do share. Because और also masculine रहने की बात, I agree that कुछ जो gay होते हैं लोग, gay people, they tend to they start living like women or females so that they can attract other men. But I've seen so many masculine gay people that it's not just कि वो masculine ही रहते हैं, it's just that they don't like women in general उस वे में जैसे उनको लड़के पसंद हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो masculinity उनकी चली जाती है because they are gay. I don't agree to that at all. That doesn't make sense to me at all, honestly. और अगेन अगर डिवाइन पावर ने सब बनाया है तो डिवाइन पावर ने ही इस कॉन्सेप्ट को आगे लाया है. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि ज़्यादा मुश्किल एक्सेप्टेंस इसीलिए हो गई लोगों के लिए क्योंकि कुछ बहुत थोड़े अमाउंट लाइक पॉपुलेशन ऑफ गे पीपल, उन्होंने थोड़ा वैसे रहना शुरू कर दिया या फिर उनको पोर्ट्रे ऐसा अपने आप को कर दिया दैट पीपल स्टार्टेड फीलिंग ओके यू कांट डू दिस, यू आर नॉट अ वुमन. आई थिंक बट जो मैस्कुलिनिटी में रह के गे हैं, आई थिंक वो सही है यार. ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इसी चीज़ से हो गई कि अरे आप लड़कियों की तरह बात क्यों कर रहे हो. दैट डजंट सीम वेरी नाइस ऑल्सो. बट द फैक्ट दैट ऐसा नहीं है कि प्यार सिर्फ लड़का और लड़की में होता है. प्यार लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, दोनों ये सब में हो सकता है. मुझे ऐसा मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी द टू साइड्स of even the society, not just here in this room, but I feel through this video we can also see the two parts or two sides of the society. जहाँ पे एक तरफ है which are very supportive about this thing, those who think that is absolutely normal, and दूसरी side आ जाती है who don't think it is normal at all, जिनके लिए आज तक की एज में honestly saying I'm not too old. Me too. Yeah. I'm younger than her. I'm not too old. I am from the Gen Z era as you said, but Gen Z era में अगर आधे से ज़्यादा लोगों को मैं देखूंगी ना, उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत कॉमन होगी, उनके लिए चीज़ बहुत नेचुरल होगी, उनके लिए चीज़ फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं होगा. दे विल बी एब्सोल्युटली फाइन विद इट. दे वुड बी लाइक इट्स हिज चॉइस, इट्स हर चॉइस, उसकी मर्जी, उसको करने दो, हमारा मतलब नहीं बनता बीच में बोलने का. बट मुझे ऐसा लगता है जेनजीज में भी, हमारी एज में भी, देयर इज़ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, से इट होमोफोबिक, से इट एनीथिंग, किसी रीज़न से उनको क्यों नहीं पसंद, मे बी दे डोंट इवन हैव अ रीज़न कि उनको क्यों नहीं पसंद, उनको बस वैसे ही नहीं पसंद. जिनको नहीं पसंद वो भी आधे से ज़्यादा पेयर प्रेशर में ही नहीं पसंद कर रहे कि भाई अगर हमारे ग्रुप को नहीं पसंद तो हमको भी नहीं पसंद होनी चाहिए ये चीज़. इवन तो ये हो सकता है कि मे बी उनमें से खुद को ही ऐसा सारा निकल जाए, ठीक है ना, हो सकता है ऐसा. बट स्टिल अगेन नो पर्सनल अटैक टू एनीवन इन एनी वे. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ ऑनेस्टली सेइंग मेरी फैमिली में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, मेरे आसपास की सराउंडिंग्स वोंट बी फाइन विद इट, तो मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट फॉरेन ही रहेगा. अगर मेरी फैमिली के लिए वो कॉन्सेप्ट फॉरेन है ना, अगर मेरी फैमिली वाले फॉर एग्जांपल नहीं मानते कि ऐसी कोई चीज़ है, तो वो चीज़ मेरे लिए भी वैसी ही रहेगी. भले आई कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, भले आई कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल हु इज़ वेरी ओपिनियनेटेड, हु फाइट्स इन एवरी सिंगल थिंग, जिसको हर एक चीज़ में बोलना होता है, लड़ना होता है. मैं तो हूँ ही वैसी, पहले ही बता दूँ. बट कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें अगर मैं बोलती हूँ या फिर अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ, even if we have class discussions on this particular topic, I make sure to keep my mouth shut, because sometimes my opinions or my idea of this particular community in the way LGBTQ+, no hatred, but I feel कि मेरा जो आइडिया है या मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती है, एंड मे बी वो कुछ लोगों को पसंद ना आए. तो इसलिए फिर मैं इस
ऐसे मैटर्स में यूजुअली बोलना ही नहीं चाहती हूँ, बट एट दिस पॉइंट, एट दिस लाइक यू नो प्लेटफॉर्म, यहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम लोग कमेंट्स में बोल दोगे मुझे, हो वाहिनूर ऐसी है, वाहिनूर वैसी है। गुरवीर को तो पता है मेरे थॉट्स क्या है, जो मेरे नोन है उनको तो पता है मेरे थॉट्स क्या है। एटलीस्ट यहाँ पे बैकफायर नहीं ना होगा मेरे पे, यहाँ पे मैं अपने थॉट्स बता सकती हूँ कि हाँ मेरे लिए वो चीज़ नहीं ठीक है, तो मेरे लिए वो चीज़ नहीं ठीक। अकॉर्डिंग टू मी, लव कैन ओनली हैपन बिटवीन द ऑपोजिट जेंडर, बी इट सेक्शुअली, बी इट इंटीमेटली, और बी इट इन अ नॉर्मल वे, कि हाँ ठीक है सेक्सुअल और इंटीमेसी के बिना भी प्यार होता है लोगों को। इट इज़ नेसेसरी कि हमेशा उसके कारण ही हो, उसके बिना भी होता है। एंड आई सपोर्ट दैट थिंग कि हाँ भाई, अगर तुम प्यार करते हो इन सारी चीज़ों के बिना भी यू कैन सर्वाइव इन लाइफ, बट आई विल नेवर बी ओके विद द फैक्ट और विद द कंसेप्ट ऑफ दिस थिंग। So like she said कि उसकी family में it's a foreign concept and it will not be acceptable. So I also come from a family जहाँ पे इसको बिल्कुल acceptance नहीं मिलेगी। तो but that doesn't mean कि my opinion it affects my opinion in any of way. मतलब मुझे तो लगता है, अगर घर पे भी बात होती है तो मतलब not with my पूरी family, if with my sister or my mother, so I say that I genuinely do feel like it's very natural, but that doesn't mean कि उनको भी ये चीज़ माननी ही पड़ेगी। उनका जो सोच है वो उनकी सोच है, but जो मेरी सोच है, I think that has nothing to do with how they think, because I've been very rebellious in this matter कि आप अगर ऐसा सोचते हो तो आप क्यों सोचते हो, और मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ जैसे आप सोच रहे हो। मैं ना सोच सकती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ मेरे को इफ़ेक्ट करती है, दैट यू नो कि इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल या फिर कुछ भी है। आई थिंक अगर वो चीज़ नेचुरल है तो मैं उसको फिर भी नेचुरल ही बोलूँगी जो मुझे लगता है। एंड आई ऑल्सो कम इन दिस जनरेशन ओनली ऑफ जेन ज़ी, एंड मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू ही सब चीज़ों को यू नो आई गॉट टू नो अबाउट दिस कम्युनिटी एंड एवरीथिंग, एंड थ्रू ऑफ कोर्स माय फ्यू फ्रेंड्स, एंड बट आई जनरली अगेन आई वुड से कि मुझे लगता है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मैं इतने ओपनली इस चीज़ के बारे में बात भी कर रही हूँ, एंड मेरी आधे खानदान ने मुझे फॉलो भी किया है, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट वीडियो में यही चीज़ बोल रही हूँ, तो मुझे भी हेटरेट तो मिलेगी गाइज, जज तो मैं भी होने वाली हूँ, बट बिकॉज वी डिसाइडेड टू डू समथिंग लाइक दिस, तो हमने बोला कि अच्छे से करते हैं और पहली वीडियो ही थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रखते हैं ताकि थोड़ा मज़ा आए। या बट आई ऑल्सो टेल यू वन थिंग, अगर हम लोग अपनी सोसाइटी में ये चीज़ कह रहे हैं दैट इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड, या सेम सेक्स मैरिज लीगल होनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट डू यू थिंक कि हमारे लॉ में उनको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए? ओके, सो आंसरिंग टू हर yes और नो में पहले जवाब दे दीजिए। नो। सॉरी, आई से यस। सो द थिंग इज कि अगर ये चीज़ इतनी नेचुरल होती, अगर ये चीज़ इतनी नॉर्मल होती, द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु हैव बिन लाइक यू नो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये सारे हैं, दोस आर क्वाइट एजुकेटेड पीपल, उनको एम ही नहीं बट आल्सो वेरी ओल्ड। नो नो नो, सारी बातें अलग है। इवन दे नो कि आजकल सोसाइटी में क्या चल रहा है, इवन दे नो कि जनरेशन कैसे डेवलप हो रही है, बहुत सारी चीज़ें जिसका लाइक यू नो वो आ रहा है, एवोल्यूशन आ रहा है कहीं ना कहीं। बट अगर इस एक चीज़ का नहीं आ रहा, अगर इस एक चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है इवन बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर हाईली एजुकेटेड इन दिस थिंग, हु आर हाईली एजुकेटेड इन हाउ अ ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, इन हाउ अ ह्यूमन बॉडी वर्क्स, एक इंसान अगर किसी तरीके से बिहेव करता है वो क्यों बिहेव करता है, अगर किसी क्रिमिनल ने क्राइम किया है उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, अगर हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट में हैं वही इस चीज़ को अप्रूव नहीं कर रहे, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बाकी की जो सोसाइटी है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करे। कैमरा के पीछे मुझे थ्रेट किया गया है कि चुप हो जा, अब तू नहीं कुछ बोलेगी, बहुत बोल दी है। सो शी हैज गिवन हर ओपिनियन के व्हाई डज शी थिंक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए, एंड आई थिंक they are also a part of our society, and if everyone else have rights they also deserve this itni si right ke you know they can live with the person they love openly and freely,
स्टेयर्स तो मिलेंगी, सोसाइटी इतनी जल्दी चेंज नहीं होगी, ये तो पता है, सबको पता है. इनफैक्ट एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लग सकता है, बट आई थिंक लॉ कैन बी वन वे ऑफ इट. हमारी कंट्री में वैसे भी बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेसी बहुत जल्दी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन के यू नो दे डोंट हैव द राइट और द से और एनीथिंग. इफ़ वी हैव द राइट कि जिनसे हमें प्यार है हम उनके साथ रह सकते हैं, तो आई थिंक दे ऑल्सो डिज़र्व दिस मच रिस्पेक्ट एंड राइट फ्रॉम द लॉ ऑफ द कंट्री, लॉ ऑफ द लैंड, कि वो अपने यू नो प्यार के साथ ओपनली फ्रीली रह सकें. ऐसे तो एक्सेप्टेंस हर चीज़ को बहुत लेट मिली है हमारी कंट्री में, बट मिल गई है इवेंचुअली. एंड आई थिंक एक दिन आएगा कि इनको भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगी. एंड आई थिंक इफ़ दे गेट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी वंस, द कम्युनिटी इटसेल्फ, तो चीज़ें काफ़ी कम वो हो जाएंगी. यू नो जो कॉम्प्लिकेटेड और जो ओपिनियंस इतने स्ट्रांगली हेट्रेड वाले आते हैं, आई थिंक या तो वो एक एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाएंगे या वो एक्सट्रीम लेवल पे कम हो जाएंगे, या फिर एटलीस्ट LGBTQ कम्युनिटी के पास एक वो होगा कि हमें इनसे ज़्यादा बॉदर नहीं होना, बिकॉज नाउ वी हैव द सपोर्ट ऑफ द लॉ. सो आई थिंक कि अगर हमारे पास राइट्स का हक है तो उनके पास भी है. एंड अगर एक ऐसा लॉ आता है तो आई थिंक आई एम प्रिटी मच फाइन विद इट एंड आई वुड बी happy only for them. And so I feel it's also about the environment that you've grown up in. Okay, we've known each other not for very long time, for like a year, and it's like ke her upbringing is very different, my upbringing is very different. I would personally say that her upbringing is a little more in the rural area of the society. My upbringing is in a very urban area of the society, and I've lived that way throughout my life. But here you completely see the difference. जहाँ पे हम ये चीज़ें भी सोचते हैं ना कि मे बी जो urban लोग हैं, ज़्यादा urbanized cities है, वहाँ पे ये चीज़ normalized है, rural area में नहीं है इतनी ज़्यादा. But I feel यहाँ पे आपको वो भी कहीं ना कहीं difference नज़र आएगा कि मेरे opinions regarding this topic is absolutely against wale, her opinions is absolutely in the favor wale. So I don't think it has anything to do like, you know, supporting LGBTQ plus or not supporting, being against them has nothing to do with where you belong या आप कैसी society से आते हो. It's but just purely on how you perceive exactly it. But I feel कि आप personally उस चीज़ को कैसे लेते हो, that matters a lot, and that is also a part of the environment that you have grown up in. Okay, I wouldn't say कि मेरी family में it has ever been normalized, ठीक है. And for me, of course, as she said that she's been very rebellious since day one. I wouldn't say कि I was that you know अच्छा बच्चा घर का, नहीं मम्मा पापा ने जो बोल दिया मैं वही करूँगी. No, I wasn't. But there have been certain topics or certain issues in you know general society जो मेरे घर पे अगर कभी डिस्कस भी होते थे ना, सो मेरे लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल हो गई कि हाँ ठीक है, अगर ये चीज़ सही नहीं है तो वो चीज़ सही नहीं है. एंड इवन इफ बीइंग रिबेलियस दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट हर एक चीज़ पे आई कांट बी रिबेलियस. अगर किसी चीज़ को लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सेम है एज अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, आई वुडंट चेंज इट जस्ट टू स्टैंड आउट ऑफ माई फैमिली. I wouldn't ever do that. I wouldn't ask my family to accept something जो मैं खुद accept नहीं करती, but just because मेरे बाकी सारे आसपास के friends वो चीज़ accept कर रहे हैं, वो चीज़ normalize कर रहे हैं, तो मैं भी वो चीज़ normalize करूँ. and then I expect कि जो मेरे around लोग हैं जो ये चीज़ को accept नहीं करते, वो भी इस चीज़ को accept करें. So ऐसे like she said family में acceptance नहीं है, मेरी family में भी इस चीज़ की acceptance नहीं है. and I'm very sure when I upload this video तो कॉल्स आ सकते हैं मुझे मेरे परिवार से. बट देन आई ऑल्सो फील दैट आई हैव ऑल द राइट टू वॉइस माई ओपिनियंस एंड मैं करूँगी. मैंने जो चीज़ मुझे पहली बार सुन के महसूस हुई, मैंने हमेशा स्टक बाय दैट. एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि वी ऐसा नहीं है दैट यू नो वी बोथ डोंट हैव फ्रेंड्स फ्रॉम दैट कम्युनिटी. वी डू, यू नो. ऑल्सो this is just our opinion as straight people. If you guys are interested, we could also, you know, next time if someone is willingly ready to
from that LGBTQ community to come and voice their opinions and have a discussion or a fight with Wahinur, are most welcome. I will be a part of that episode. Please DM I'll us. be like, I'm out of this. Before You Gunveer can't. and that person kills me, I'm like, I'm out of this. I'm sorry, guys. No, I genuinely don't have problem with the people who don't support that community. Wow, I mean, homophobic. I'm not. I am not. I'm also not like कि मैं उनके साथ pride parade पे जाके उनका साथ दूंगी. No, I just feel like that they have the right to exist. They have the right to be there, and until and unless they are bothering me in some uncomfortable way, I'm very much comfortable with them. So yeah. So, If someone is interested, please let us know. We'll be very happy to have a podcast with you, and Wahinur would be thrilled. and as she just mentioned, the pride parade thing that usually happens, I also feel if people gonna normalize something like this, if they want कि नहीं ये चीज़ बहुत normal है, ये चीज़ तो सोसाइटी में सबके साथ होती है, किसी के साथ भी हो सकती है. So if there is a gender, male gender, female gender, we don't go out on roads protesting that oh we are females. Males don't go out on road saying oh we are males. So इस चीज़ की ज़रूरत क्या है? I know Because- acceptance नहीं है. I understand कि उस चीज़ की Because acceptance. males and females are two genders, two sex that are assigned to us while like at birth. That ठीक है? is my point. ठीक है? Two there are. क्यों छेड़ाछाड़ी करनी है तुम लोगों को? रुको भाई, Problem क्या है? रहने दो मुझे. तो वो चीज़ है, and उसकी acceptance from the very first day है. But the fact that के having feelings for opposite gender, or sorry, same gender and everything, that is a feeling. That has nothing to do with your body. Like absolutely nothing to do with your body. It is something that people purely feel inside them, and उसकी acceptance नहीं है. So उसकी awareness भी नहीं थी until unless ये pride parades शुरू नहीं हुई हैं. जब तक हमारे चंडीगढ़ में, मैं चंडीगढ़ वैसे इतना कभी गई भी नहीं हूँ, बट जब तक चंडीगढ़ में प्राइड परेड नहीं हुई थी, या फिर ऐसा कुछ न्यूज़ में इतना वैसे दिखाया भी नहीं था, बट ऐसा ऑनलाइन कुछ नहीं आया था, मुझे भी इतना कुछ अवेयरनेस नहीं था इस चीज़ के बारे में. बट आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू क्रिएट एन अवेयरनेस, एंड इट्स ऑल्सो it strengthens the LGBT community from within. Okay, you know, we can also come together, celebrate ourselves, and you know, spread awareness and everything. अभी बहुत परेड्स में कुछ इधर उधर चीज़ें होती रहती हैं, वो तो हमारी सरकारों की रैलियों में भी होती रहती हैं, तो उस पर भी कुछ नहीं बोल सकते. इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया. मतलब जहाँ पे 4 लोग होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा इंडिया में, तो उस पर भी मैं कुछ नहीं बोल सकती. बट आई थिंक काफ़ी ज़रूरत है प्राइड परेड्स की एंड अवेयरनेस की, ताकि पीपल कैन यू नो नॉट बी बॉदर्ड बाय देम एंड एटलीस्ट एक्सेप्ट देम. मतलब अगर इस कमरे में मैं रह रही हूँ, तो अगर साथ वाले कमरे में दो गे लोग रह रहे हैं, तो मुझे उनसे ऐसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कल को मेरे बच्चे होंगे तो बोलूँगी उनसे तो बात नहीं करनी है बेटा. आई थिंक इट शुड बी वेरी नॉर्मलाइज्ड. आज नहीं हो पाएगा, बट आई थिंक जब हम बुढ़े हो जाएंगे तब हो जाएगा. सो गुरमीत ने अभी एक और थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोली थी, दैट आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दिस कंसेप्ट अंटिल एंड अनलेस दे आर नॉट बॉदरिंग मी इन एनी वे दैट मेक्स मी अनकंफर्टेबल, राइट? सो वो भी कहीं ना कहीं ये आ गई ना कि अगर वो तुम लोगों को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं देन यू आर नॉट फाइन. अंटिल एंड अनलेस वो तुम्हारे साथ ठीक है, दूर दूर से देख रही है तुमको, तब तक ठीक है. पास में आके ऐसे कर दिया तो फिर उनकी फीलिंग्स नहीं है. दूर दूर से उनकी फीलिंग भाई सपोर्टिव है. पास आके अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई चीज कर दी तो नहीं भाई हम सपोर्टिव नहीं इस चीज को लेके, हम तो बड़े when I अनकंफर्टेबल said कि if they are not making me uncomfortable, तो मैंने पहले भी बोला था that few you know people from that community are not very respectable. ठीक है, they don't respect your opinion, your feelings and everything. वो ऐसे आके टची होते हैं. But I said कि most of the people are very respectable, and when I use that uncomfortable word, it was not कि अगर वो PDA कर रहे हैं मुझे उनका प्यार देखने में दिक्कत है, but अगर कोई ऑपोजिट जेंडर का इंसान भी मुझे आके ऐसे करेगा, मुझे अनकंफर्टेबल तब भी होगा. तो अगर इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद
anything, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट थिंग. मतलब अगर मुझे एक लड़का भी आके ऐसे करेगा तो मुझे तब भी प्रॉब्लम होगी, बट अगर एक लड़की लेस्बियन है वो मुझ पे ट्राई मारी वो भी ऐसे करेगी तो तब भी मैं अनकंफर्टेबल तो होंगी यार. वो तो बेसिक चीज है. इफ आई डोंट लाइक योर टच दैट मीन्स आई डोंट लाइक योर टच. You don't like anybody's touch, please. Yeah, I'm not a very touchy person. But honestly, अनकंफर्टेबल चीज़ से ये मतलब था कि यू कांट बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल. कि अगर कोई इंसान आपको मना कर रहा है, आपको पता है वो इंसान इन चीज़ों में नहीं विश्वास हो, दैट पर्सन इज स्ट्रेट, तो वैसे आपको आके अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहिए. बट अदरवाइज होल्डिंग हैंड्स इन पब्लिक वो तो बाद में होगा जब एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो उस पर तो अनकंफर्टेबल तब की तब देखेंगे. बट मुझे ऐसे नहीं होगी प्रॉब्लम कि अगर कोई हाथ पकड़ के दो लोग जा रहे हैं तो मैं तो बोलूंगी, But अरे don't you personally feel कि ये चीज़ का आजकल प्रेशर भी ज़्यादा आ गया लोगों पे कैसे कि नहीं, मतलब लाइक यू नो Accept करना ही करना. No. For example, take a girl who is a lesbian, ठीक है. So she just comes up to her other friend, for example, be it a person comes up to you and says, I think you should explore more, I think you should explore more. I know कि हाँ हमारे पर्सनल ओपिनियंस हैं, इतने हाईली ओपिनियनेटेड लड़कियों को तो आगे कोई जो मर्जी बोल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम लोगों को. बट डोंट यू थिंक कि कहीं ना कहीं the LGBTQ+ community tries to come up and tell the straight community कि नहीं, you should also explore, you should also think about it, because there are many people that I have seen and many stories that I've heard from different people कि they are legit like कि नहीं ऐसा हो सकता है, you should explore. But I think वो चीज़ impose करना उन पे, that is very wrong. ये चीज़ मत करो, because that would make anyone uncomfortable. Yes. अगर LGBTQ+ कम्युनिटी को ये चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है ना कि स्ट्रेट लोग उनको कह रहे हैं कि नहीं तुम स्ट्रेट ही बनो, तो LGBTQ+ कम्युनिटी भी आगे अगर स्ट्रेट कम्युनिटी को बोलेगी ना कि नहीं भाई तुम एक्सप्लोर करो अपने आप को, तुमको पक्का और ना कुछ अच्छा मिलेगा, ये होगा, तो ये भी चीज़ गलत है. तो पहली बार इन दिस वीडियो आई विल से दैट आई एग्री टू वाहिनूर. Finally. So because ऐसा होता है, बट I genuinely feel that this is wrong, and to all those people who are doing it out there, please guys don't. But I think it is also a very basic human nature. पीयर प्रेशर करना तो आजकल लोग स्मोकिंग पे भी कर ही देते हैं. अरे यार ट्राई कर. डेटिंग कल्चर पे भी करते हैं. हाँ, ट्राई कर. डेटिंग कल्चर पे भी बोल, अरे तू ट्राई करना, डेट करना, यू शुड ऑल्सो डू इट, यू विल हैव फन, ये वो बहुत होता है. तो आई थिंक दैट इज जस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर. बट वो चीज़ यू शुड मतलब one person has to be strong enough to say that no, I don't want to. I am very sure of my identity, my sexuality and my choices and preferences in life. And I think that's something that अगर वो सिगरेट पे भी फोर्स कर रहे हैं तो तब भी आपको ऐसे होना पड़ेगा. अगर वो आपको आपकी सेक्सुअलिटी पे फोर्स कर रहे हैं तो तब भी आपको ऐसे होना पड़ेगा. तो आई थिंक इट्स Finally we agree on one particular thing in this entire video. Now you also have to agree on something that I'm saying. It is natural. Agree on that. So guys, this was it for the first video. I would only agree to one topic, that I made the coffee and it was really amazing, and you should agree on that. But it was not cold enough. Doesn't seem like a problem. So guys, this was it for the first episode. I really hope you guys enjoyed it, and I really hope that most of the people came actually up till the last of this video. Yes. And please keep supporting us, keep loving us, and we would love if you guys can just give us certain topics which you guys want us to discuss. Okay, this was the first video, that is why we were here. Yeah. From the upcoming videos, we'll try our level best to have some or the other kind of guests here, so that we can have an opinion, or like you know, an idea, a third perspective in our videos. We'll try that as well. So please show all the love that you can on this video, and also let us know about your opinions in the comment section below. Don't forget that, because if our opinion matters, yours matters also. So please, if someone, I'm saying it again, if anyone from that community is if someone from that community is willing to give their opinion and have a fight with Wahinur, you're most welcome. If you don't want to DM on our official page, you can DM me personally, because you can DM me because we both have the ID. Yeah, because we both use that ID. And if we have made any comment, जाने अनजाने में हम बच्चे हैं अभी, फर्स्ट वीडियो थी,
मैं तो बिल्कुल किसी की कोई सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करना चाहती थी, बट स्टिल इफ एनी ऑफ योर सेंटिमेंट्स गॉट हर्ट, आई एम ट्रूली सॉरी फॉर दैट, बट इट वाज ऑल माय पर्सनल ओपिनियन, हाउ आई हैव ग्रोन अप, व्हाट आई हैव सीन ग्रोइंग अप, एंड मेरा ओपिनियन यही रहेगा. मे बी ओवर द टाइम कभी आगे जाके चेंज हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अभी के लिए ये है. Same goes for me when I didn't want to hurt people who oppose this community and anyone from my khandan who thinks that कुछ ज़्यादा ही open topic ले लिया या कुछ भी है. So I think we took a lot of your guys' time. So we will wrap it up here and we'll see you on next Sunday. Bye bye.